بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول یہ چاہتیں یہ شدتیں از قلم سمیرہ شریف طور کی قسط نمبر 13 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ سیکنڈ پارٹ سیکنڈ جلد کی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ عثمان احمد نے زباریہ بھابی کے ہمراہ واپس جانے کی بات کی تو سعید احمد نے شام تک روک لیا تھا۔ انہیں ولید والے پرپوزل کے متعلق ان سے ڈسکشن کرنا تھی۔ اگلی صبح سامان بھی گھر آیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد انہوں نے سامان، عثمان اور زباریہ بھابی کو پاس بٹھا کر وہ ذکر چھیڑ دیا تھا جس کی وجہ سے سامان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً کراچی آیا تھا، مگر زرش کی وجہ سے اس طرف دھیان ہی نہیں آیا تھا کہ وہ کس بات سے یا کس کام سے یہاں آیا تھا۔ ابو جی، میں سمجھتا ہوں یہ سب قبل از وقت ہے، آپ کا فیصلہ یقیناً اہم ہوگا۔ آپ نے کبھی ہمارے لیے غلط نہیں چاہا اور وہ لڑکا ولید بے شک بہت اچھا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ فرا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ یوں عجلت میں کیا جائے۔ ہم کچھ عرصہ انتظار کر سکتے ہیں، سامان نے فوراً کہا تھا، مگر میں انتظار کرنے کے قطعی حق میں نہیں ہوں۔ ولید بہت اچھا لڑکا ہے، میں نے فرا کے فرد سے جلد از جلد سب کچھ دوش ہونا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کب باقاعدہ اپنے گھر انوائٹ کروں۔ جب آپ سب طے کیے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں سے پوچھنے کی فارمیلٹی بھی کیوں نبھا رہے ہیں؟ جو جی میں آتا ہے کریں، یہی روٹین امی نے اپنا رکھی تھی اور اب آپ بھی۔ سامان ایک دم تلخ ہوا تھا، ٹیمپرامنٹ فوراً لوز کیا تھا، ورنہ یوں پل میں آؤٹ ہو جانا فطرت نہ تھی۔ شاید اندرونی ڈپریشن تھا یا پھر۔ سعید احمد اور عثمان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ویسے بھی فرا آپ کی بیٹی ہے، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر ہم سے مشورے کی زحمت بھی کیوں کی؟ سامان کے لب و لہجے پر بھابی نے بھی بغور دیکھا۔ سامان، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ سامان احمد کا اکھڑا لہجہ انہیں فوراً ٹوکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سوری۔ سامان احمد کو فوراً احساس ہوا تو اگلے ہی پل معذرت کر لی، مگر چہرے کے تنے عذاب نارمل نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، خلفشار اندرونی تھا یا بیرونی، زباریہ بھابی اندازہ نہ کر پائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں اس رشتے میں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کی توقع مجھے جہاں تھی وہاں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ ان کا اشارہ طاہرہ بیگم کی طرف تھا، اور تم بغیر وجہ کے اعتراض کر رہے ہو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیوں اعتراض کر رہا ہوں، اور وجہ بھی کوئی غیر معقول نہیں ہے۔ عثمان نے خاصے تعجب سے سامان کو دیکھا تھا۔ سعید احمد بھی ایک پل کو چپ رہ گئے تھے۔ میں فرا کو آپ جیسی یا آپ جیسی نامکمل محرومیوں سے بھری لائف نہیں دینا چاہتا۔ ہماری ایک ہی اکلوتی بہن ہے، اسے اپنی خوشیوں کے ہر طرح کے تحفظات کا حق حاصل ہے۔ ایک نامکمل ذہنی خلفشار سے بھری وہم و وسوسوں کی آمچگاہ سے مزین ایک بٹی ہوئی زندگی ہی وہ گزارے گی اگر آپ اس رشتے یا کسی بھی اور رشتے پر بضد رہیں گے۔ بڑے تحمل سے سامان نے واضح کیا تھا، فرا تمہاری بہن ہی نہیں میری بیٹی بھی ہے، مجھ سے زیادہ تم لوگوں کو اس کی خوشیوں کا احساس نہیں ہوگا۔ انہوں نے غصے سے سامان کو دیکھا، اندر سے حیرت زدہ بھی تھے کہ اچانک یہ سامان کو کیا ہو گیا ہے، اتنا تردد، اتنی بحث و تمہیز تو اس نے اپنی دفعہ بھی نہیں کی تھی۔ عثمان بھائی، آپ ہی ابو کو سمجھائیں پلیز۔ بھابی، آپ تو ہر بات سے باخبر ہیں، آپ ہی کچھ کہیں۔ سامان نے دونوں خاموش بیٹھے میاں بیوی کو بھی گھسیٹا تھا۔ سامان، میں بھلا کیا کہوں؟ سعید یہاں پاکستان میں ہوتا یا پھپھو وغیرہ کی طرف سے کوئی رد عمل ہوتا تو میں کوئی بات بھی کرتی۔ بھابی نے سامان کو دیکھتے ہوئے کہا تو سعید احمد چونکے۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں سعد کا کیا ذکر؟ اگر تم فرا کی ذات کو پچھلے حوالوں کی وجہ سے سعد کے ساتھ نتی کرنا چاہتے ہو تو سامان میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا۔ اگر حالات و واقعات اس قدر جلدی تبدیل نہ ہوتے تو شاید کچھ گنجائش نکل آتی۔ سعد زرش کو چھوڑ کر گیا تھا، اس کے بارے میں اب بھی اگر کچھ سوچوں تو پھر زرش، سعود اور شائستہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہوگی۔ بے شک سعد لاکھوں اپنا ہے، مگر یہ بات بھی تو بھلائی نہیں جا سکتی کہ وہ شادی کے قریب اتنے نازک حالات میں فرار ہوا تھا۔ سامان نے لب بھینچ لیے تھے۔ ابو جان، اگر پھپھو لوگ ایسا کوئی خیال اب بھی رکھتے ہیں تو مذائقہ تو کوئی نہیں ہے۔ وحید الدین انکل کی فیملی سے پھپھو کی فیملی لاکھ درجے بہتر ہے، اور سعد کے بارے میں ہر طرح کی گارنٹی ہے۔ عثمان بھائی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ نہیں عثمان، تمہاری اور سامان کی بات کے بعد میں اب فرا کی ذات کو کوئی متنازع قصہ نہیں بنانا چاہتا۔ لڑکیوں کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ کہے۔ سامان کیوں زور دے رہے ہو؟ سامان کیوں زور دے رہا ہے میں اتنا نہ سمجھ رہی ہوں، مگر اب سعد کے بارے میں سوچنے کی بھی گنجائش نہیں بچتی۔ بڑے تحمل سے انہوں نے رد کیا تھا، بلکہ اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سامان احمد کو لگا جیسے انہوں نے انتہائی فیصلہ سنا دیا ہو۔ سعد کے بارے میں گنجائش نہیں بچتی، مگر فرا کے بارے میں تو نکالی جا سکتی ہے نا۔ سامان کے اندر بڑی زبردست تحریک برپا تھی۔ سامان کے الفاظ ہی ایسے تھے کہ وہاں کمرے میں موجود ہر شخص ایک پل کو خاموش ہو گیا تھا۔ سامان، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟
किस के मुताल्लिक कह रहे हो? इन्होंने कुछ तवक्कुफ के बाद बड़ी खौफगी से समान को कहा था। जी बहुत अच्छी तरह। समान अहमद ने फौरन सर हिलाया था। आप फरा की और मेरी अटैचमेंट से बेखबर नहीं है। इसके इस कदर करीब कोई भी नहीं, यहाँ तक कि जरिश भी नहीं। समान का अंदाज बड़ा संजीदा था। सईद अहमद के चेहरे पर तफक्कुर के आसार नुमाया थे। आपा के बार बार जोर देने और साथ की शादी से फरार ने इन्हें यह तो समझा दिया कि साथ क्यों भागा है, मगर फरा की जात भी इन्वॉल्व होगी इन्हें गुमान ना था। अब्बू जी, साथ सिर्फ फरा के लिए यहाँ से गया था। ठीक है, तब हालात कुछ ऐसे नहीं थे। इसने जो भी कदम उठाया मगर इसकी नेक नीयति शामिल थी इसमें। उफ, ये वाले नहीं रुकते वो। हम इसे मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसके साथ को हाईलाइट करने का हक रखते हैं। साथ से मेरा राब्ता है मुसलसल। बेशक पुप्पो लोग अभी नाराज़ हैं, मगर हालात बदलते देर नहीं लगती। आपके मजबूर करने पर ही सही, मगर मैंने इस शादी को नेक नीयती और दिल से कबूल किया था। ठीक है, जरिश ने हालात के मुताबिक फैसला किया, मगर आप भी साथ के इस ताउन नुमा एहसान से इनकारी नहीं होंगे। अगर साथ ये कदम ना उठाता तो आज हालात बिल्कुल भी ये ना होते। समान खामोशी से उठ खड़ा हुआ था। मैं इस रिश्ते के हाथ में नहीं हूँ। हम कुछ अर्सा इंतजार कर सकते हैं। पुप्पो लोगों की साथ से नाराज़गी हमेशगी पर मुहित नहीं है, मगर मुझे सिर्फ फ़र्क के जज्बात का एहसास है। आप भी ज़रूर सोचिएगा, अगर मैंने किसी भी मामले में गुस्ताखी की तो इसके लिए माजरत कि बहरहाल इस किस्से पर मैं कुछ तलख ज़रूर हुआ हूँ। समान ने सब पर एक भरपूर नज़र डाली और फिर कमरे से बाहर का रुख इख्तियार कर लिया। सईद अहमद ने खाली आंखों से इसे जाते देखा था। उस्मान अहमद और जुबारिया भाभी ने एक दूसरे को देखा और फिर लब भींच गए। न जाने आप सईद अहमद का क्या फैसला करने वाले थे। अगले 2-3 दिन लगे थे इसे रूबा सेहत होने में। जिस्मानी तौर पर कमजोरी पर काबू पाया गया तो कलाई का जख्म भी कुछ बेहतर हो गया। 5वें दिन इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। 5 दिन बाद इसका पहला पेपर था। जरिश ने यह कदम क्यों उठाया, सभी बेखबर थे। जरिश गुमसुम ही रही। सिर्फ ठीक हूँ या चंद जुमलों के अलावा वो किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। शाइस्ता बेगम इसे देखती तो दिल होलता था। ये 5 दिन समान ने इसके पास अस्पताल में गुजारे थे और जरिश का समान की मौजूदगी में हर वक्त आंखें बंद किए पड़े रहना शाइस्ता बेगम के अंदर बहुत से सवाल जगा गया था, मगर ना ही वो जरिश के पूछने का रिस्क ले सकती थी और ना ही समान अहमद से। मगर वो महसूस कर सकती थी कि जरिश की इस इंतहाई जज्बाती हरकत के पीछे समान अहमद का कोई रद्द-ए-अमल ही है। मगर क्या? समान ने जरिश के घर शिफ्ट होने पर कुछ रिलैक्स महसूस किया था। इस्लामाबाद के कई काम अटके हुए थे। समान फौरन रवाना हुआ था। वहाँ तो दिन लगे थे। कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि सिर्फ 1-2 बार ही कॉल करके चच्चे से जरिश की खैरियत दरियाफ्त की थी। इधर से फरागत मिलते ही समान वापस कराची आया था। दिलो दिमाग तो इस जज्बाती लड़की में अटका हुआ था। इस रात वो सिर्फ इसके सामने टूट कर रोई ही थी। इसका रोना ऐसा था कि समान को नदामत ने आ लिया था और फिर इसके बाद वो मुसलसल समान को नज़रअंदाज कर रही थी। गुमसुम चुपचाप सबके सामने थी। घर जाकर फ्रेश होकर समान चचा के यहाँ चला आया था। शाम का वक्त था। सभी लाउंज में थे सिवाय जरिश के। नौशी इधर ही थी। चंद पल समान सबके साथ ही बैठा रहा। जरिश किधर है? नौशी से पूछा गया। कमरे में, मैं देखता हूँ। समान फौरन ही खुद ही उठ गया था। शाइस्ता ने खामोशी से समान को जाते देखा। जरिश तो कमरे में बंद बिल्कुल ही चुपचाप हो गई थी। आयातक करने वाले भी इसकी खामोशी साफ महसूस कर रहे थे। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब इसका हाल सुनाए क्या? कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या? समान के कदम दरवाजे की दहलीज पर ही ठटक गए थे। वो कंप्यूटर के सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी बज़ाहिर स्क्रीन पर नजर गाड़े, मगर वो दरअसल अपने वजूद से बेखबर थी। इसकी आंखों की दमकती चमकती लहरों की रोशनी मानित पड़ चुकी थी। बेहिस अंदाज में वो सिर्फ सामने देख रही थी। धीमी आवाज में बजता म्यूजिक भी शायद इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल ना कर पाया था। एक आग गम तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई। जब जिस्म ही सारा जलता हो तो दामने दिल को बचाएं क्या? वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब इसका हाल सुनाए क्या? समान को लगा जैसे वो अपने खोल में सिमट गई है, अपनी जात की गुंबद में कैद लम्हा ब लम्हा खत्म होती जा रही है। बेपरवाही से दुपट्टा कंधे पर था। पीले लिबास में कुर्सी के पुश से सर टिकाए वो जर्द सरसों का फूल लग रही थी। सुनहरे रेशमी बाल साइड पर थे, बिखरे उलझते बेतरतीब से अंदाज में। समान ने एक गहरी सांस खारिज की। इसे इस हाल में देखकर दिल तो लहू लहू हो गया था। समान के एक गैर जज्बाती रवैये ने इसे एक तूफान से अशना किया था जिसका अंदाजा अब हो रहा था। समान ने कदम अंदर की तरफ बढ़ा लिए थे। वो अपने तसव्वुर में इतनी गुम थी कि समान की मौजूदगी भी असरअंदाज ना हो पाई थी। जरिश पुकार पर एक पल को वो ठटकी थी, निगाहों को जंबिश दी।
तो नजरें समान के चेहरे पर एक पल को जम सी गई थी। शर्मिंदा अफसुर्दा चेहरा सामने था, मगर इसका नुकसान पूरा नहीं होने वाला था। अब इसका एतबार टूटा था। इसके अंदर की जरिश का कत्ल हुआ था, वो कैसे अब दोबारा अपने आप को बहाल करती। इस रात समान अहमद की जज्बातियत ने सिर्फ चंद अल्फाज ही अदा नहीं किए थे, इसका एतबार तोड़ा था। इसके मुंह पर सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा था, समान की जात पर यकीन रखने वाली जरिश का कत्ल हो गया था। और इसके बाद वो अब कैसे जीती? इसकी आंखें बेतासुर ही थी, वो अपनी जगह से हिली नहीं थी। सामान को सामने देखकर हमेशा की तरह घबराई नहीं थी, और ना ही कंप्यूटर सीडी प्लेयर ऑफ करने का ख्याल आया था। यूं लग रहा था गोया वो बेहिस और पत्थर हो चुकी है, हर एहसास यारी, हर जज्बे से बदजन। कैसी हो? जरिश ने निगाहें फेर कर कंप्यूटर की तरह कीबोर्ड पर जमा दी थी। जरिश, समान के लिए इसका ये अंदाज बड़ा अजियतनाक था। बड़े कुर्ब से पुकारा गया था, जरिश प्लीज। समान ने रिवॉल्विंग चेयर का रुख अपनी तरफ कर लिया था। वो सर उठाकर समान को देखने लगी। समान ने पहले कंप्यूटर ऑफ किया और फिर इसे देखा, जो इसको देख ही नहीं पा रही थी। जरिश, आई एम सॉरी यार, मुझे अंदाजा है मैंने तुम्हें बड़ी बुरी तरह हर्ट किया है, मगर यकीन जानो वो सिर्फ वक्ती कैफियत थी, वक्ती उबाल था। मैंने कभी गुस्से में ऐसा इजहार नहीं किया, मगर इस वक्त ना जाने क्या हो गया था। तुमसे मैं क्यों बदजन हो सकता हूँ? तुम तो मेरी रूह में घुलने वाली खिड़की हो। अपने आप से भी कोई नाराज हो सकता है भला? सजा देना थी तो मुझे देती, खतावार तो मैं था और नादिम भी हूँ। तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारे एतबार को मजरूह किया। प्लीज कुछ तो कहो, बुरा भला, लानत मलामत, कुछ भी, प्लीज प्लीज यूं चुप ना रहो। वो इसकी तरफ झुकते इसको दोनों हाथ थाम कर समान ने कहा तो जरिश को लगा इसके दिल पर किसी ने बारिश बरसा दी है। जलता दिल एकदम फना हुआ था, या फिर जलथल अंदर का सारा कुर्ब इसके चेहरे पर सिमट आया था। समान के मजबूत हाथों की गिरफ्त में इसके लर्जते नाजुक हाथ इसके अंदर हलचल मचा चुके थे। आप कुछ कहने की कोशिश में गुलाबी होंठ लरस गए थे। हाँ बोलो, प्लीज कुछ तो बोलो। इसके हाथों को दबाते अपने वालिहानापन का इजहार करते उकसाया था, और जरिश को लगा वो अंदर से बिल्कुल टूट गई है। वो रोना नहीं चाहती थी, बिखरना नहीं चाहती थी। इसकी जात बहुत शिकस्त से दो चार थी, और वो अपनी शिकस्त का मातम समान के सामने तो कतई नहीं करना चाहती थी, मगर खुद पर बस कहाँ था। समान की आवाज़ ने इसके अंदर इसके सब सोए जज्बों को जगा डाला था। वो तो मर कर जी गई थी। आप आंखों से शिद्दत से आंसू बह निकले थे, और फिर वो खुद पर बंद नहीं बांध सकी थी। वो बड़ी कमजोर और आम सी लड़की ही तो थी, कैसे खुद को संभालती? फूट फूट कर रोती थी। समान ने कुर्ब से होंठ काट लिए थे। कालीन की एक तरफ रखे कुशन को खींचकर इस पर बैठा, इसका बाजू भी खींचकर खुद में समेट लिया था। समान का गिरबान गर्म आंसुओं से तर होता जा रहा था। वो तो हर तरह के एहसास से बेखबर सिर्फ अपनी शिकस्त का मातम कर रही थी, और समान के दिल पर जो कयामत बरपा थी इसका अंदाजा इसे नहीं था। आपने मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया, मुझ पर शक करते, हाथ उठाते, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की खुर्दो कॉम्प्लेन नोच डाली। क्यों किया आपने ऐसा? मेरा एतबार रेजा रेजा कर डाला। बहुत सा रो लेने के बाद एकदम समान के सीने से चेहरा उठाकर इसे देखा। वो सरनवाज फारूक थे। मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर इन्होंने अपना प्रपोजल दिया था। वो मेरे बारे में बेखबर थे, और जब इन्हें इल्म हुआ तो इन्होंने इस रात माजरत करने को फ़ोन किया था। मैंने तो वो आखिरी जुमले सिर्फ मजाक में कहे थे, और आपने मुझे गलत समझा। नहीं, बाखुदा वक्ती तौर पर सिर्फ गुस्सा था, मगर ऐसी बात कतई नहीं है। समान ने फौरन अपने जुमलों का एतबार सौंपना चाहा, मगर वो तो बेयकीन थी। आपने मुझ पर हाथ भी तो उठाया था। समान की संगीन गलती सामने थी, पागलपन था मेरा। बस तुम्हारे अल्फाज ने गुस्सा दिला दिया था। तुमने ताल्लुक ख़त्म करने की बात की थी, और मुझे गुस्सा आ गया था। भला मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? मैंने तो तुम्हें अभी मुकम्मल तौर पर पाया भी नहीं, फिर खोने की जसारत कैसे कर सकता हूँ? भला कोई अपनी मर्जी से अपने जिस्म से अपनी रूह को निकलने देता है? और जरिश को एकदम इसके दिमाग पर छाई कहर समेटने लगी थी। जैसे समान ने झुक कर बड़ी मोहब्बत और नरमी से इसके रुखसार पर बिखरे तमाम आंसू चुन लिए थे। मुझे तो फौरन निदामत के एहसास ने आ लिया था। रह रहकर गुस्सा भी खुद पर आ रहा था। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वाकई तुम्हें कुछ हो जाता तो? कोई यूं भी करता है? समान ने बड़ी नरमी से इसका बायां बाजू थामा था। वो सिसकी, मैंने अगर गुस्से में ताल्लुक तोड़ने की बात की थी तो आप गुस्से में ना आते, सामने से हट जाते, बाद में क्लियर कर लेते। मगर आपके जाने के बाद लगा अब कुछ भी बाकी ना रहा। मेरा आपसे बचपन का साथ है। आपका वो रवैया रह रह कर दुख में मुब्तला करता रहा, और इस वक्त तो दिल चाह रहा था कि सांस अभी बंद हो जाए, या फिर बैठे बैठे मौत आ जाए। समान के अंदर फिर से मलाल बिखरने लगा था। जिंदगी में पहली दफ़ा इस कदर जज्बातीपन का मुजाहिरा किया था, और इसका खमियाजा भी भुगत लिया था। हमेशा अपने एहसासात और जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल रखता, इन नहायत ठंडे और धीमे मिजाज का मालिक होने के बावजूद इस वक्त न जाने क्यों अपनी ही जज्बाती कैफियत का शिकार होता चला गया था। आप वादा करें मुझसे, आप आइंदा मुझसे कोई बात नहीं करेंगे, मुझ पर मुकम्मल एतमाद करेंगे।
मैं सबकी बेएतमादी सह सकती हूँ मगर आपकी नहीं। वादा करें मुझसे। इसके तो यकीन और एतमाद की धज्जियां बिखरी थी, कैसे एकदम संभल जाती। इसका जहन तो सिर्फ एक नुक्ते पर जम गया था। जरीश, जरी, मेरा मकसद वो सब नहीं था। तुम समझने की कोशिश करो यार, मैं भला क्यों बेयकीनी या बेएतबारी का मुजाहिरा करूंगा? कोई अपनी ज़ात से भी बेएतबार हुआ है क्या? समान की वही यकीन दहानियाँ थी, वही अव्वल रोज वाले अंदाज थे। जरीश ने सर उठाकर देखा। जो गुजर गया वो फिर क्या था? समान ने इसकी आंखों के तासुर को पढ़ा तो अंदर का मलाल बढ़ने लगा। जरीश लाख बदजनो नाराज सही, मगर इस तरह की बेयकीनी समान अहमद के मामले में इसने कभी नहीं दिखाई थी। ये नज़र का धोखा नहीं है जरीश, यकीन करो मुझ पर। हमारा आज का साथ नहीं, बरसों का साथ है। गुस्सा और जज्बातियत एक तरफ, मगर मैं तुम पर बेएतबारी का मुजाहिरा करने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। समान के अंदाज में मलाल बिखरता चला गया था, अपने रवैये पर, अपनी गुज़श्ता गलती पर। इस वक्त जरीश को अपने दिल की कैफियत बताना दुनिया जहान का मुश्किल अमर महसूस हो रहा था। दिल के जज्बों की सच्चाई और नेक नीयती आश्कार करना बड़ा मुश्किल तलब मरहला था। अगर दिल चीट कर दिखाना मुमकिन होता तो शायद ये भी कर जाता। समान ने आहिस्ते से इसके बाजू छोड़ दिया था। जरीश के ज़हन में एक ही बात जम गई थी और समान की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे गुजरे वो नाखुशगवार पल, वो लम्हे इसके जहन के स्लेट से मिटा दे, या फिर कोई जादुई छड़ी हो जिससे इसकी जहनी कैफियत नॉर्मल की जा सके। वो जिस बेएतबारी और बेयकीनी की फिजा में उलझ गई है, इससे निकाला जा सके। काश मैं तुम्हें अपने जज्बों की नेक नीयत का यकीन दिला सकता। समान ने बड़ी आज़ारदा निगाहों से जरीश को देखा था। समान खामोशो आहिस्तगी से अपनी जगह से खड़ा हो गया था। जरीश, किस अंदाज, किन अल्फाज में अपनी शर्मसारी का इजहार और कल्बी कैफियत को आश्कार कर दूं कि तुम्हारी सारी बेयकीनियां ख़त्म हो जाए? तुमने अपने ज़हन को एक ही नुक्ते पर जमा दिया है। ना तो तुम कुछ समझ रही हो, ना यकीन। तुम मेरी अव्वलीन मोहब्बत हो। मैं क्यों कर तुमसे बदगुमान होने लगा? हाँ, चंद कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में एक कमज़ोर इंसान होने का खराज ज़रूर वसूल किया था, मगर दिल के किसी भी गोशे में ये गुमान पैदा नहीं हुआ। मैंने तुमसे बदजन नहीं हुआ। घर जाकर खुद को लानत मलामत करते भी ये एहसास ना हुआ कि बेयकीन हुआ हूँ, बल्कि अपने रवैये और जज्बातीपन पर इस्तराब का शिकार हो रहा हूँ। और अब समान ने पलटकर इसे देखा। वो घुटनों में सर दिए अभी भी सिसक रही थी। समान ने अजियत और बेचारगी से लब भींच लिए थे। तुम्हारे एग्जाम्स में सिर्फ 3-4 दिन बाकी हैं, प्लीज़ खुद को कंपोज करो, बहाल करो, इस तरह तो बिखर जाओगी। जरीश ने सर उठाकर समान को देखा। समान ने नजरें फैली। मुझसे अब एग्जाम्स नहीं दिए जाएंगे। बड़ी बेचारगी थी इसके अंदाज में। जरीश, प्लीज़, मैं हर तरह की सज़ा सहने को तैयार हूँ, जो कहोगी करूँगा, मगर प्लीज़ अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो। अपनी तालीम की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे इस इंतहाई कदम से पहले ही सब परेशान हैं। अब तुम्हारे इस फैसले से सब नहीं तो कम से कम चचा और चचे जान तो ज़रूर मुतासिर होंगे। प्लीज़ कुछ सोचो। इसके इस फैसले ने समान को मज़ीद तकलीफ में धकेल दिया था। तो क्या करूं? आपने मुझे जीते जी मार डाला। सब जज्बे मर गए। कैसे सोचूं? अब कुछ नहीं सोचा जाता। इधर वही आलम था। समान ने बेहद एहजियत से इसे देखा था। सख्त एहजियत में शाइस्ता बेगम की भी ज़ात आ चुकी थी। कमरे की दूसरी तरफ होने वाली बातें इनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। समान अहमद के इंतहाई बेचारगी और जरीश का पूरी तरह सिसकना रोना, अंदरूनी मुकालमे, अल्फाज, समान के जुमले, जरीश के अल्फाज, वो अजीब उलझन में गिर गई थी। बहुत सी बातें होने के बावजूद, क्लियर होने के बावजूद बहुत कुछ वाज़ह हो चुका था। वो तो समान और जरीश की मौजूदगी में यूं ही हालात का जायजा लेने इधर आई थी कि दिल में समान के रवैये और जरीश की मुसलसल चुप ने ये बेयकीन तो कर दिया था। जो भी मामला हुआ था इन दोनों की ज़ात के दरमियान ही में तो हुआ था। समान का शर्मशार, माजरत ख्वाह लबो लहजा और जरीश का हार जाने वाला अंदाज, वो तो सब कुछ और भी रखा जा रहा था जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये नवाज फारूक कौन था? वो उलझ कर रह गया था। इनके उलझे दिल को एक कोना इत्मीनान तो हासिल हुआ था। इतने दिनों से जरीश के इस इंतहाई कदम की वजह तो सामने आई थी। इन्हें यकीन था बात इन दोनों की ही है, मगर मामला ये होगा। वो तकलीफ से दरवाजे से हट गई थी। वो अंदर जाने के बजाय लॉन में आकर बैठ गई थी। कुछ देर बाद इनकी तवक्का के ऐन मुताबिक समान आता दिखाई दिया था। इन्होंने इसकी तरफ बगौर देखा था। बिंचे लब पजमिरदा अंदाज में कदम उठाता वजूद इसके दिल में लाल जगा था। समान अपने ही ध्यान में चलते समान ने चौंक कर आवाज़ के ताक़ुब में देखा। चचे जान को लॉन चेयर पर बैठे देखा तो इसी जानिब आ गया। आप इधर अकेली क्यों बैठी हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खैरियत? समान ने चौंक कर देखा। वो खुद उलझी हुई थी। बैठो। समान सामने रखी कुर्सी पर टिक गया था। मैं तुम्हारे और जरीश के माबीन होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। अभी दानस्ता नहीं, मगर तुमसे
सारी बात जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ज़रिश ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। समान के चेहरे का रंग एकदम मुतगय्यर हुआ था। माँ जैसी चची से ऐसी हया आई कि नजरें खुद ब खुद झुकती चली गई। इन्होंने बिला तमहीद असल बात की थी। समान को चंद पल लगे थे खुद को बहाल करने में। बहरहाल एक जगह गलती हुई थी, इसकी सजा भी तो भुगतना थी ना। अब आहिस्तगी से वो गुजरी रात हर बयान कर डाली। ये नवाज कौन है? इन्होंने सारी बात सुनकर पूछा तो समान ने नफी में सारी लाए। मुझे नहीं मालूम, जो ज़रिश ने अब कहा है वो भी बता दिया है। हो सकता है कोई जानने वालों में से हो, मगर वो सर नवाज फारूक कह रही थी। कहीं अकेडमी में कोई सर ना हो। वैसे एक दो दफ़ा इसने ये नाम पहले भी लिया था, मगर ख्याल नहीं अकेडमी में ही हूँ। चंद दिन ही वहाँ गई थी, मगर फिर अचानक वहाँ भी जाना छोड़ दिया। समान ज़्यादा नहीं जानता था, सो कुछ भी ना कहा। मैं ज़्यादा क्रेद अब नहीं करती, कहीं नाराज़ ना हो जाए। गुमान ही नहीं था कि कोई बात ऐसी भी होगी। वो धीमे लहजे में यूं बोल रही थी जैसे खुद से महव कलाम हो। मैं ज़री से बात करूंगी, एग्ज़ाम्स की तरफ मसरूफ़ करती हूँ। हो जाएगी ठीक। आहिस्ता आहिस्ता, परेशान मत हो। इन्होंने समान का चेहरा देखा तो एहसास हुआ कम तकलीफ में तो इसके साथ भी ना थी, बल्कि जितना ज़रिश तकलीफ में थी इन्हें एकदम तरस आया था। सो फौरन दिलासा भी दे डाला था। इसका जहन सिर्फ एक नुक्ते पर जम गया है कि मैंने बेएतबारी का मुजाहिरा किया। इतना कहने के सुनने के बावजूद इसका जहन इसी मकाम पर है। मैं गलती पर हूँ, मगर आप बताइए कैसे यकीन दिलाऊं कि वो सिर्फ वक्ती जज्बातियत थी। दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। समान ने दिल का बोझ कह डाला था। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी, तुम फिक्र ना करो। बल्कि तुम्हारे लिए तो ये खुश आइंदा बात होनी चाहिए। तुम्हारे एक जज्बाती कदम ने इसकी ज़ात में दरारें डाली हैं, तो वहाँ वो तुम्हारे जज्बों को भी कबूल करने के काबिल हो जाएगी। तुम टेंशन ना लो, जो होना था हो चुका। बस अपने कदमों को पीछे मत धकेलना। वो इस वक्त जिस जज्बाती के शिकस्त वर्फिदगी से दो चार है, तुम्हारी मौजूदगी इसके लिए बहुत अहम है। हमारी एक नुक्ते पर जम जाने पर यह यकीन और एतमाद की बात तो चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं देख लूंगी। समान के चेहरे पर छाई बेचारगी और शर्मसारी के जज्बात के हमरा परेशानी की अजियत देखकर इन्होंने फौरन दिलासा दिया था। समान ने फौरन मुस्कुराकर चची को देखा था। ज़रिश जिस मुकाम पर थी वहां अब कुछ भी कहना, यह दावा करना फजूल था। समान ये बात चची से नहीं कह पाया था। शाइस्ता बेगम को ज़रिश को नॉर्मल करने में बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। समान अहमद मर्द था और बीवी के मामले में अचानक किसी भी मर्द का ऐसा रिएक्शन फितरी था। फिर समान का यह रवैया इसे इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता था। ज़रिश ने कभी समान को इस रिश्ते के हवाले से कबूल नहीं किया था। दोनों के दरमियान इस रिश्ते के हवाले से जो एतमाद की फ़ज़ा होना चाहिए थी वो बिल्कुल मफकूद थी। फिर ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाना शाइस्ता बेगम की समझ में नहीं आ रहा था कि समान को इल्ज़ाम दें या ज़रिश के जज्बात को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। बहरहाल कसूरवार इन्हें ज़रिश ही लग रही थी। ज़रिश के एग्ज़ाम्स करीब थे, ऐसे में इसकी ये कंडीशन और ये जज्बातियत भरा कदम इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था। आने वाले दिनों में इन्हें ज़रिश को इस जज्बाती धचके से निकालने के लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ी थी, और वो इसके लिए कोशां भी थी कि वो नॉर्मल हो। एग्ज़ाम शुरू हो गए तो वो मुसलसल इसके पास जमी रहती थी। शुरू में तो वो एग्ज़ाम देने की भी रवादात ना थी, मगर इनके समझाने, मनाने और बहलाने से वो आमादा हो गई थी। मगर वो सारा जोश जैसे मानित पड़ गया था। शाइस्ता बेगम ने नौशीन को इधर ही बुला लिया था। खुद सारा दिन ज़रिश के आगे पीछे फिरते हुए गुजारती। घर डिस्टर्ब हो रहा था, ऐसे में नौशीन का बड़ा सहारा था। इनकी मुसलसल मेहनत से ये ज़रूर हुआ था कि वो सब कुछ भुलाकर जज्बातियत के हिसार से निकलकर पूरी तवज्जो से एग्ज़ाम दे रही थी। शाइस्ता ने समान को बार बार इधर आने से मना किया था। इस दिन के बाद सिर्फ एक चक्कर लगा था और बेशाइस्ता के मना करने पर वो इस्लामाबाद चला गया था। ज़रिश के मोबाइल पर कॉल से भी टोक दिया था। वो चाहती थी कि वो ध्यान और तवज्जो से सिर्फ एग्ज़ाम्स दे, किसी तरफ तवज्जो ना दे, और आने वाले दिनों ने साबित कर दिया था कि इनकी मेहनत रायगा नहीं की थी। इस सारे अरसे में नौशीन इधर ही थी। एक एक करके ज़रिश का लास्ट पेपर भी ख़त्म हुआ तो जहाँ मैं दिन रात की इस मुशक्क़त से रिलैक्स होने पर शुक्र अदा किया, वहीं शाइस्ता बेगम ने भी शुक्र का कलमा पड़ा था कि एक बहुत बड़ा बोझ कंधों से उतर गया था। शाइस्ता बेगम ने आने वाले वक्त के लिए ज़रिश की ज़ात के हवाले से जो भी सोच उपचार कर रखी थी, इसमें सरफहरिस्त ज़रिश की रुखसती थी। वो राज़ी थी या नहीं, इन्होंने तय कर लिया था कि इसकी राय को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। हाँ, इसे समझाएंगे ज़रूर वो गलत कर रही है। जिस तरह ज़रिश की ज़िंदगी में ये जज्बाती वाक़या रूनुमा हुआ था, वो नहीं चाहती थी कि मज़ीद वो कोई ऐसी हिमाकत कर बैठे जिसका मदावा सिर्फ पछतावे की सूरत में हो। कल ज़रिश का लास्ट पेपर था और आज इन्होंने सोच लिया था कि वो ज़रिश से आज हतमी बात करेंगी। ज़रिश फ्री हो चुकी थी, अब बात करने में कोई हर्ज भी ना था। फाइनल और आखिरी बात, हतमी फैसला कुन बात।
वो जरीश के कमरे में आई तो वो नहा कर निकली थी, बालों में ब्रश कर रही थी। मामा को देखकर मुस्कुराई। आइए, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पेपर्स की टेंशन उतरी है तो सोचा कमरे का भी हुलिया दुरुस्त कर लूं। अब फारिग होकर बात लिया है। शाइस्ता बेगम ने देखा कमरा साफ और सलीके से सेट था। बेतरतीबी तो पहले भी नहीं थी, मगर स्टडी टेबल पर हर वक्त बिखरी रहती थी, जो अब दुरुस्त हालत में थी। किताबें तरतीब से रैक में सजी हुई थी। इधर आओ, इधर बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना है। इन्होंने कहा तो वो चौंकी। इनके संजीदा मिजाज को देखते इनके करीब ही बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। खैरियत मामा? हाथ का जख्म कैसा है अब? इन्होंने पूछा तो जरीश ने अपने बाएं हाथ की कलाई को देखा। जख्म बढ़ चुका था, अब सिर्फ निशान थे। बायां हाथ था, अगर दायां होता तो वो एग्जाम्स में बहुत मुश्किल हो जाती थी। वो शायद कभी पेपर्स ना दे पाती। एग्जाम्स के दौरान भी मुसलसल बैंडेज होती रही थी। अब तो सिर्फ निशान बाकी रह गया था। निशान देखते ही इसे और भी बहुत कुछ याद आया था। इसमें सर झटका। वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, खासकर इस तकलीदा वाकया को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो धीरे से बोली। दर्द तो नहीं होता? नहीं, एग्जाम्स हो चुके हैं, मजीद का इरादा है? इन्होंने पूछा तो जरीश ने इन्हें देखा। बीबी ये करूंगी, रिजल्ट का मुझे यकीन है हमेशा की तरह टॉप करूंगी। सोच रही हूँ वक्त ज़ाया ना करूँ, रुझान टेस्ट की तैयारी कर लूँ। मामा, अगर मैं यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहूँ तो? क्या मतलब? मैं सोच रही हूँ अगर मैं पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहूँ तो? झिझकते हुए इसने दिल की बात कह दी। शाइस्ता बेगम ने बड़ी हैरानी से इसे देखा। मजीद पढ़ने पर इन्हें एतराज़ ना था। वो तो खुद चाहती थी कि वो तालीम मुकम्मल करे। अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाना इनका ख्वाब था, मगर ये यूनिवर्सिटी चेंज करने का ख्याल इन्हें बिल्कुल ना भाया था। क्यों? मैं माहौल चेंज करना चाहती हूँ, कुछ अरसे के लिए मंजर से हटना चाहती हूँ। इन्होंने परेशानी से जरीश का चेहरा देखा था। वो तो समझ रही थी कि जरीश नॉर्मल हो चुकी है, ज़हनी तौर पर कुछ फ़र्क आया है, मगर इसकी ज़हनी कंडीशन इस मदार पर मरकूज थी। बल्कि अब ये फ़रार का ख्याल सुनकर इसका दिल खौफ ज़दा हो गया था। अगर माहौल ही चेंज करना मकसद है तो इस्लामाबाद से बेहतर कोई जगह नहीं है। वहाँ अच्छे इदारे हैं जो बीबीए करवा रहे हैं, और मैं भी सोच रही हूँ कि अब तुम्हें इस्लामाबाद रुखसत कर देना चाहिए। इन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में इब्तिदा की। नहीं मामा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं कराची या इस्लामाबाद से हटकर सुबह पंजाब के इदारों की बात कर रही हूँ। इसने रुखसत कर देने वाली बात को अक्सर नज़रअंदाज का है। चलो ये तो बात की बात है, देखेंगे। फिलहाल जो तुमसे कहने आई हूँ वो गौर से सुन लो। जरीश ने गौर से मामा को देखा। शायद कोई संजीदा मामला था। कल भाई साहब और आपा लोग आ रहे हैं। अच्छा, मगर क्यों? खैरियत? हमारे और भाई साहब के दरमियान ये बात तय थी कि एग्जाम्स के फौरन बाद तुम्हें इस्लामाबाद भेज दिया जाएगा। रात तक उस्मान और जुबारिया भी पहुँच जाएंगे। कल सामान भी ज़रूरी मीटिंग थी, वरना वो आज ही चला आता। यहाँ से आपा की फैमिली, नौशीन के ससुराल वाले और भाई साहब लोग होंगे। ताहिरा आती है या नहीं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। ये हमारा यानी हम सब लोग का बशमूल तुम्हारे पापा सबका मुश्तरका फैसला है। कल तुम्हें सामान, जुबारिया और उस्मान के हमरा इस्लामाबाद रवाना कर दिया जाए। बहुत दिन रह लिया तुमने मैके में। अगर तुम्हारी तालीम का यह सिलसिला ना होता तो हम ये कदम पहले उठा लेते। तुम्हें इसलिए ना बताया कि तुम डिस्टर्ब हो। कल तक ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। पर कल रुखसती यकीनी है। ये कैसे हो सकता है? जरीश, जो हैरानी से सुन रही थी, एकदम इनकारी हुई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। इस्लामाबाद तो कतई नहीं। एकदम कहते हुए वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई तो शाइस्ता बेगम ने बरहमी से इसका हाथ पकड़कर इसे दोबारा बिठाया था। अहमकाना बातें मत करो जरीश, अब तक जो हो चुका वो काफ़ी नहीं है क्या? और कितना जलील करवाना है हमें? वो पटी तो पड़ी थी मामा। जरीश ने बेयकीनी से इनके लबो लहजे और अल्फाज पर इन्हें देखा था। आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? मैंने बोला, क्या ऐसा सोचा है? वो पल में रो दी थी। सोचा नहीं, मगर तुमने अब जिस तरह जिद पकड़ ली है, इससे हम सिर्फ जलील ही हो रहे हैं। खानदान भर में जिसको देखो इस किस्से को छेड़े बैठा है। क्या बेटियों की माँ होना मेरे लिए इतना बड़ा जुर्म है? तुमने पहले जज्बातियत भरा अहमकाना हमाकत खेज जो कदम उठाया वो कम था क्या मेरे लिए? जरीश ने जुबान दांतों तले दबाई। शाइस्ता बेगम के तेवर इंतहाई जारहाना थे। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, बस सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहती हूँ कि अब जज्बातियत की उम्र से निकल आओ। बड़े लोग हैं जिन्हें ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ती है, रिश्ते नातों में ऐसी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। फिर तुम्हारे साथ समान अहमद जैसा मजबूत मोहब्बत भरा हवाला है, हर सर्द गर्म में तुम्हारा मुहाफिज बनेगा। बाज को तो ये सहारा भी मुयसर नहीं होता। कड़ी धूप में बरहना पा चलने की सज़ा सारी उम्र झेलते हैं। हमारी तरफ देखो, हमारा एहसास करो। पहले ही
बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं तुम्हारे पापा, वो किसी अजियत में हैं। तुम्हें यूं देखते हैं तो कैसे इनका दिल तड़पता है, काश तुम समझ सकती। मामा मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसी सजा तो मत सुनाए, मैं सारी उम्र एक इल्ज़ाम बनकर रह जाऊंगी, वो ज़िंदगी से इससे ज़्यादा मुश्किल होगी। सब ठीक हो जाएगा, कुछ अरसा बातें होंगी, फिर मामला सुलझ जाएगा। कभी तो तायरा को अपनी गलतियों का एहसास होगा। तुम हिम्मत ना हारो, छोड़ दो ये जिद, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, खुशियों का दिन है। जब वक्त गुजर जाता है तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। इन्होंने आपके तहम्मुल और मोहब्बत से कहा था। जरीश ने माँ को देखा, इनके चेहरे पर अनकही इल्तजा थी। कैसा दर्द, कैसा कुर्ब। वो शिद्दत से रोती थी। मामा आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इन्होंने मुझ पर कैसी बदएतमादी का इजहार किया है। वो मुझे कैसी लड़की समझते हैं। वो अब भी खुलकर ना कह सकी, मगर शाइस्ता समझ गई थी, मुझे सब इल्म है। वो हैरान होकर मामा को देखने लगी। समान ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, अपनी हर गलती कबूल की है। फिर बेटा, जहाँ रिश्तों में इतनी दूरियां हों, दिलों में इतनी गलत फहमियाँ हों, वहाँ ऐसी सूरत हाल हो जाना कोई गैर मामूली बात तो नहीं। समान भी इंसान है, और फिर तुम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है, इसके कुछ तकाजे थे। बाहिमी एतमाद और यकीन का माहौल इस पौधे को मिले तो ये पनपता है, फलता है, फूलता है। जब यहाँ दिल में हजार गलत फहमियाँ, शिकवे, शिकायतें लिए बैठी हो, और वो वहाँ झूठ नहीं, सामने की बात है। तुम्हारी हर तरह के रवैये के बावजूद समान ने कभी तुम्हारी ज़ात को हल्का नहीं पड़ने दिया, कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। और तुमने जो जज्बातियत दिखाई, अपनी ज़िंदगी से खेल जाना भी मसले का हल नहीं होता। तो फिर मैं क्या करती। इस वक्त तो दिल सिर्फ मर जाने को चाह रहा था। शाइस्ता बेगम की तमाम बातों के जवाब में वो फिर सिसक उठी थी। फिर जज्बातियत। जरीश तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, तुम दिलो दिमाग की जज्बातियत के तराजू में रखती हो। अगर तुम इस तरह जिद पर कायम रही तो समान के दिल में अभी तुम्हारे लिए जो जज्बात हैं वो खुद ही तुम खत्म कर डालोगी। मर्द मोहब्बत करता है तो जवाबन इतनी ही मोहब्बत और तवज्जो मांगता है, और जहाँ इसे तवज्जो मिलती नहीं, इसकी तवज्जो का महवर भी बदल जाता है। अभी समान तुम्हारा दीवाना है, तुम्हारा नाम की माला जपता है। खुदा न खास्ता कभी तुम्हारे रवैये से दिल बर्दाश्त होकर इसने अपना कदम मोड़ लिया तो, कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जरीश ने अपने बहते आंसू हाथ की पुष्ट से साफ किए थे। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ जिल्लत और रुसवाई हो। शाइस्ता बेगम को लगा जैसे इन्होंने सिर्फ अपना वक्त जाया किया है। तुम्हारा जो रवैया है ना समान के साथ, इससे क्या मैं भी यही कहूँगी, तुम किसी और को सोच रही हो। मामा मुझे श्रद्धा रह गई, आप मुझे ऐसा समझती हैं। लहजे में हजारा शिकवे तर आए थे। नहीं, मगर लोगों की जबान नहीं रोकी जा सकती। जरीश ने बड़ी नाराज नजरों से इन्हें देखा था। आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया है, एक प्रपोजल ही तो है। तुम शादीशुदा हो, मगर सोचो जरा, और समान की जिंदगी में, तुम्हारी और समान की जिंदगी में कोई तीसरा आदमी दाखिल हो गया तो। मामा प्लीज़, इसमें अजियत से टोक दिया था, इसके लिए ऐसा तसव्वुर भी गुनाह था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कतियत से इनकार था। ऐसा हो जाएगा अगर तुम इस तरह जिद पर अड़ी रही तो। इनका लहजा सख्त लिया हुआ था। समान एक मुकम्मल नॉर्मल इंसान है। शादी ब्याह खेल नहीं है, ना ही दो अफराद के मबीन तय होने वाला मामला है। ये दो खानदानों की बका का सवाल है। जिस तरह तुम जिद पर अड़ी हुई हो ना, तो ठीक है, हम तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मगर हम तुम्हारी सारी उम्र जोग लेने की इजाज़त नहीं देंगे। समान हमें लाख अजीज सही, मगर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं। ऐसे सूरत में हम कोई हतमी फैसला ज़रूर करेंगे। कैसा फैसला। जरीश ने नासमझी सही ने देखा। तुम समान के साथ रहने पर राज़ी नहीं हो। समान भी आखिर इंसान है, वो 1-2 साल इंतज़ार करेगा, मगर कब तक। फिर हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे ख्याल से ये रिश्ता महज मजबूरी का सौदा हो। तो फिर क्या इसे तोड़ देना बेहतर है, तुम्हारे हक में भी और समान के हक में भी। तुम्हारे हक में भी और समान के हक में भी। क्या। जरीश ने अपने हवा से उठते महसूस किए थे। इसने तो कभी ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हैं आप। इसकी अपनी आवाज़ ही लड़खड़ा गई थी। मगर मैंने ऐसा नहीं सोचा। फ़ौरन घबराकर माँ को देखा। मगर हम सोचेंगे। तुम्हारी सारी उम्र इस हालत में अपने सामने नहीं बिठाए रखना। समान हालात को समझने की सलाहियत रखेगा। ये कदम इसके लिए मुश्किल ज़रूर होगा, मगर नामुमकिन नहीं। और फिर तुम्हारी बका का भी तो ख्याल है। हम समान को तुम्हारे लिए मजबूर करेंगे। वो बाहिमी रजामंदी से ये रिश्ता ख़त्म कर देगा। फिर हमें जो मुनासिब लगा वक्त के साथ फैसला करके तुम्हें तुम्हारे घर रुखसत कर देंगे। रह गई तायरा की ज़ात तो सिरे से ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। समान भी वक्त के साथ संभल जाएगा। कहीं ना कहीं अल्लाह ने इसके लिए भी जोड़ बनाया होगा। हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है कि जहाँ दिल और दिमाग ना मिलते हों, फैसला कर लेना बेहतर है। मगर जरीश याद रखो, महज जिद या अना में ऐसे फैसले करना गुनाह है, सरासर गुनाह। तुम समझदार हो, अब बताओ क्या चाहती हो। शाइस्ता को लगा
जरिश को लगा शाइस्ता बेगम की बातों ने इसका दिमाग माफ कर दिया है। वो खाली नजरों से माँ को देखे गई थी। कल सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अव्वल मकसद तो यही है कि तुम्हारे रुखसती का प्रोग्राम है, फिर भी तुम्हारे पास वक्त है। कल तक सोचना अच्छी तरह, मैं फिर फैसला लेना। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तुम इनकार करती हो तो कल सबकी मौजूदगी में ही हमने सोच लिया कि फैसला कर लिया जाए, ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। रह गई रिश्तेदारी बात तो वो भी वक्त के साथ जो होगा देख लेंगे। मामा, सिसकी भरते हुई इसने इनकी गोद में सर रख दिया था। शाइस्ता का अपना दिल भर आया था। इन्होंने बहुत मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा था, अपना एकदम बहते बेताब आंसू का मुश्किल पीछे धकेला था। इसकी जरा सी हमदर्दी जरिश को अपनी जिद पर अड़े रहने पर मजबूर कर सकती थी। हमें अब कोई मजबूरी नहीं, सुलह सफाई से ही रिश्ता ख़त्म हो सकता है। हमें तुम्हारी खुशी का ख्याल है, कुछ खुशी के आगे कुछ भी नहीं चाहिए। जरिश इसकी थी। फैसला तुम्हें करना है, वो फैसला करना जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। तुम्हारी बेहतरी है तुम्हारा दिल, जिसे फैसले पर आमादा हो। महज ताहिरा की जिद और अपनी अना की ज़ख्म में अपना मुस्तकबिल बर्बाद मत करो। ताहिरा कभी माफ़ी नहीं मांगने आएगी। एक उम्र का साथ है हमारा, मैं इसकी रग रग से वाकिफ। और मेरी बेटी इतनी कमअकल नहीं कि महज किसी को फतह ठहराने को अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा ले। हमारी मोहब्बतें तो फितरी, मगर तुम्हें इस तरह कोई नहीं चाहेगा। समान ने तुम पर शक नहीं किया था, ये तो इब्तिदा थी। इस रिश्ते का तकाजा है भी ना संभली तो समान को तो तुम खुद पर बदएतमादी का शिकार होने पर मजबूर कर दोगी। शाइस्ता ने इसे देखा था, इसका वजूद होले होले लर्ज रहा था। इन्होंने इसका चेहरा हाथों में भरकर पेशानी चूमी थी। उमर की जिंदगी में दूसरी औरत मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत आने में देर नहीं लगती। तुम इधर हो और समान उधर। ऐसे अच्छे इंसान को तो दुनिया एक पल में अपनी गिरफ्त में करने का सोच लेती है। समाज से बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझने वाला। बचपन का साथ है तुम्हारा ये रिश्ता एक तरफ, जो उनसियत और चचजाद होने की हैसियत से जो मकाम तुम्हारे दिल में तुम्हारा है, वो तुम्हें कहीं और मैसर नहीं आएगा। किस्मत पर शाकिर हो जाने में हमारी ही भलाई है। अगर बहुत से लोग ताहिरा की बातों पर ईमान लाते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों का भी है। मुझे और तुम बहनों की हकीकत से अच्छी तरह बाखबर है। मैं इस ताहिरा की खातिर खुद को दाव पर मत लगाओ। शाइस्ता बेगम की बातों का असर था। वो गुमसुम बैठी, दिमाग का फैसला और था और दिल किसी और ही कैफियत में था। वो सोच सोच कर हार गई तो महज हालात के रहम करम पर छोड़ दिया। समान के साथ रुखसत होने में ये सब बेशक बहुत अजियत और तकलीफ का सामना था करना पड़ता, मगर इसकी ज़ात से मामा पापा की शिकस्त ख़त्म हो सकती थी। अपने आप को समझाने को इसे यही हुलिया मिला था, वरना ज़हन मुतमईन नहीं था और ना ही दिल। बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता कैसे इसके दिल में जगह बना रहा था वो हैरान थी। ये दिल ही था जो हर जगह रुसवा करता था। दिल अजीब कश्मकश में था। हादिया आप आई तो मामा ने इसे हादिया के साथ जाकर अपनी पसंद के कपड़े शॉपिंग कर लेने को कहा था। जहेज का सब सामान जू का तू ही पड़ा था। किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना थी, ताहम वो मामा की को इनकार ना कर पाई थी। हादिया के साथ जाकर इसने ज़रूरत की चंद चीज़ें खरीदी थी। फिर हादिया आपा इसे ले आई थी। अम्मा ने पार्लर ले आई थी। अम्मा ने इसका फेशियल करवाया था। स्किन तो इसकी माशाल्लाह पहले से ही बहुत अच्छी थी, ज़रा सी वजह से और चमकने लगी थी। फेशियल के बाद इन्होंने इसके बालों की लेयर कटिंग करवाई थी। काफ़ी अरसे कटिंग नहीं करवाई गई थी, बाल कमर से नीचे आ रहे थे। जरीज को बजाते खुद भी लंबे बाल पसंद थे। अगर ज़रा तवज्जो देती तो खासे बढ़ जाते थे, मगर जब भी बढ़ते थे आधे कटवा लेती थी। इस दफ़ा इसने सिर्फ हल्की सी कटिंग पर ही इत्तेफाक किया था। आपा के कहने के बावजूद इसने कुछ नहीं करवाया था सिवाय मेहंदी के। घर वापसी पर पुप्पू लोग आ चुके थे और फिर रात तक उस्मान भाई और जबारिया भाभी भी अपने बेटे के हमरा आ गए थे। अगले दिन घर में खासी चहल पहल थी। वो चुपचाप सबको देखे गई थी। इसे करना तो कुछ नहीं था, बस अपने कमरे में ही बंद रहना था। शाम तक अफान अंकल की फैमिली और ताया लोग भी पहुंच चुके थे। समान अहमद इनके हमरा ही था, जबकि ताहिरा बेगम नहीं थी और सब यूं मुतमईन थे जैसे अब इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। और जरीश को लेने ताहिरा बेगम का ना आना बड़ा अजियतनाक था। इसने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि कभी वो इस अंदाज में भी रुखसत होगी। ताहिरा बेगम ने जिस तरह वो सारा खेल खेला था, इसकी सिर्फ ज़ात की धज्जियाँ ही नहीं बिखेरी थी, बल्कि इसके किरदार और इज्जत नफ्स पर भी हरफ आया था। वो मुकम्मल इज्जत और आन के साथ जीना चाहती थी, मगर अब हादिया आपा और नौशी दोनों ने ही मिलकर इसे तैयार किया था। इन दोनों के अलावा इसने सख्ती से
आपा को मना कर दिया खामखा कोई भी इसके पास आकर इसे डिस्टर्ब ना करे। इसके अंदर किसी से भी सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खाना खाने के बाद जुबारिया भाभी और हादिया आपा इसे लाउंज में ले आई थी। खूबसूरत लिबास और जेवरात के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसे समान अहमद के साथ बिठाया गया तो समान हैरत से चौंका था। इसे अब तक ये गुमान था कि जरिश जरूर इनकार कर देगी, मगर अब जरिश को अपने पहलू में बड़ी खामोशी से बैठा देखकर तो यकीन करने में तामुल हुआ कि ये वही जरिश है, ये बदल गई है। इस वक्त गुज़श्ता सा वाक़यात ख्वाब ख्याल से महसूस हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, समान ने पहल की थी, धीमा सा लहजा। जरिश की समान से टकराया तो वो लब भींच गई थी। समान से नाराज़गी तो अब भी थी, बदगुमानी ऐसी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैसी हो? समान ने दोबारा लब कुशाई की तो इसने ज़रा सी देर सर उठाकर एक नज़र देखा। ठीक हो? इर्द गिर्द सभी थे। बेशक वो रवायती दूल्हों वाले एहतमाम से दूर थी, मगर मौका ऐसा था कि इससे समान की ये बेतकल्फ़ी बड़ी खुली थी। पेपर्स कैसे हुए? सब एतराफ़ में मौजूद थे, हंसी मजाक बातों में लगे हुए थे। गाहे बगाहे तवज्जो इधर भी हो रही थी, मगर समान अहमद को जैसे परवाह ही नहीं थी। जरिश से सबके सामने यूं कलाम करना और जवाब देना खासा दिक्कत तलब हो रहा था। अच्छे हो गए हैं, इसी सर्द लहजे से ताल्लुक अंदाज में जवाब मिला तो समान ने एक गहरी सांस लिया। आइंदा पेश आने वाली सूरत हाल क्या हो सकती थी? जरिश का अंदाज ज़िंदगी से मुतल्लिक क्या लाहे अमल हो सकता था? समान ने बड़ी संजीदगी से इसके झुके हुए सर को देखा था। क्या जरिश सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रही है? समान के अंदर इस सवाल ने बड़ी शिद्दत से सर उठाया था। चाहे जाने की आरज़ू तो हर किसी को होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। किसी के दिल में होना अपनी मौजूदगी का एहसास किसे बुरा लगता है? मियाँ बीवी का रिश्ता तो इससे बढ़कर था। इस रिश्ते को बाहिमी मोहब्बत और ताउन ही कामयाबी से हमकिनार कर सकता है, जबकि जरिश के लाताल्लुक सर्द लब लहजे ने समान के दिल में मौजूद सारी खुशफहमियों की तितलियों को जलाकर खाकस्तर कर डाला था। ऐसी जिंदगी तो समान अहमद के वहमो गुमान में भी नहीं थी। दिल में अफसुर्दगी का एहसास छाया हुआ था। समान आहिस्तगी से इसके पहलू से उठ गया और जरिश ने समान अहमद की खामोशी से उठ जाने पर दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा था कि मजीद किसी सवाल से बच गई है। जो दिन गुजर रहे थे, नवीरा को अपना सरापा बड़ा बेडोल सा लगने लगा था। आजकल वो अजीब दोराहे पर खड़ी थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं था और आगे वो बढ़ना नहीं चाहती थी। शारिक ज़मान के लिए वो अब भी वही पत्थर की चट्टान बनी हुई थी। अब तो शारिक ज़मान ने भी गोया इसे भूल जाने की कसम खा ली थी। जो दिन गुजर रहे थे, इनके घर में आमद ना होने के बराबर हो गई थी। नवीरा और शारिक को यूं अपनी अपनी जिद और अना में जिंदगी बर्बाद करते देखते वाहिदा बेगम का दिल हर वक्त होलता रहता था। नवीरा का हर रद्द अमल इसके सामने था और अब शारिक ज़मान की बेताल्लुकी इन्होंने बार बार नवीरा को समझाने की कोशिश की थी, मगर नवीरा हर बात इन्हें इस सिलसिले में कतई मुदाखलत ना करने का कहकर चुप करवा देती थी। और अब तो इन्होंने भी चुप साध ली थी, दोनों को इनके हाल पर छोड़ दिया था। इन्हीं दिनों इसने नवाज फारूक के लाहौर आमद और साथ ही मामूजाद रुमीना से रिश्ता तय हो जाने की खबर सुनी थी। खानदान भर में सबको ही हैरानी हुई थी इस खबर से कि फारूक चचा ने नवाज को कैसे माफ़ कर दिया, और ना सिर्फ माफ़ किया था बल्कि घर में जगह भी दे दी थी। आजकल वो दोबारा लाहौर अपने घर शिफ्ट हो चुका था। 1 माह बाद इसकी शादी थी। आजकल ख़ानदान भर में नवाज की आमद और शादी का ही जिक्र चर्चा हो रहा था। इस दिन अम्मा इसकी कैफियत का पूछने चली आई तो इसके साथ नबीला भाभी भी थी। इनका ज़्यादातर मौजू गुफ्तगू नवाज फारूक के साथ और शादी ही हो रहा था। नवीरा चुपचाप ही रही। नवाज फारूक लाहौर दोबारा आने के बाद इनके हाँ नहीं आया था, मगर खालदा बेगम के हाँ जा चुका था। नबील का क्या रद्द अमल था और वला ताल्लुक थी। इधर अम्मा और भाभी की ज़बान ज़रूर इल्म हुआ था कि नबील को बहुत कड़ा लगा था और वह नवाज के साथ बड़ी बुरी तरह पेश आया था, बल्कि सख्ती से इसे आइंदा अपने यहाँ आने से मना कर दिया था। नवीरा के लिए ये सब बेमायनी सा था। इसने तब भी दिलचस्पी जाहिर ना की थी, फिर वो क्यों करती? शारिक ज़मान तो एक तरफ इस सारे खसारे में ये शख्स बराबर का शरीक था, वो इसे क्यों कर माफ़ कर सकती थी? खाना खाकर वो अम्मा और वाहिदा बेगम के पास आकर बैठी तो अम्मा ने इसे बहुत देखा। जब से इन्होंने वाहिदा आपा और हमीद साहब के साथ भेजा था, नवीरा का रवैया इनसे बड़ा सर्द और लाताल्लुक सा हो गया था। वो इसके बाद एक बार भी इनके यहाँ नहीं आई थी। इन्होंने कई फ़ोन किए थे, हर दूसरे दिन फ़ोन पर इसकी खैरियत मालूम करती, मगर नवीरा का रवैया इस तरह बरकरार था। इन्हें हर बार नवीरा के रवैये से बड़ी तकलीफ़ होती थी। कई बार इन्होंने खुद आकर इसे अपने यहाँ आने को चक्कर लगाने को कहा था, मगर वो हर बार टाल जाती थी। खुद से तो इसने कभी फ़ोन करने की जहमत नहीं की थी। आज भी वो इसी सिलसिले में आई थी। वो नबीला को साथ लेकर शाहिदा भाभी के हाँ के कहने पर ही इनके साथ चंद दिन रहने को चल दिए। फिर तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि शायद कहीं आना जाना ही ना हो। हम तुम्हें लेने आए हैं,
تم تو سسرال کو ایسی پیاری ہوئی ہو کہ میکے کو بولتی ہی جا رہی ہو. چلو ہمارے ساتھ چند دن رہ گئے ہیں. اماں کے اشارہ کرنے پر نبیلہ بھابی نے لب کشائی کی تھی. کیوں؟ نویرا کا وہی بڑا سنجیدہ انداز تھا. نبیلہ اندر کی بات سے بے خبر تھی. ہنس دی. میکے میں بلا کیوں لڑکیاں جاتی ہیں؟ چند دن کا کہہ رہی ہوں. ہوا بدل رہی ہوگی. ویسے بھی خالہ جان میں سوچ رہی ہوں کہ ہم نویرا کو ڈلیوری سے پہلے اپنے ہاں ہی لے جاتے ہیں. آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے. شاکرا بھی اتنا اچھی طرح خیال نہیں رکھ سکتی. اب تو نویرا کو انتہائی توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے. شارق بھائی کی اپنی مصروفیت ہو سکتی ہے. وہاں میں اور امی تو ہوں گے. کیا خیال ہے؟ انہوں نے بات کرتے ہوئے حاضرین پر نگاہ ڈالی تھی. واحدہ بیگم نے نویرا کے چہرے پر ناگواری چھائی دیکھی تو گہرا سانس لیا. میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. خواہ آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے. رہ گئی چند دن جا کر رہنے کی بات. مجھے اس کی ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. میں ادھر مطمئن ہوں. آپ لوگ بھی فون کر لیتے ہیں. آ کر مل جاتے ہیں. اتنا کافی ہے میرے لیے. وہ بھی سنجیدہ انداز. آپ کے کچھ الجھ کر نبیلہ بھابی نے بغور نویرا کو دیکھا. اس کے تاثرات ناقابل فہم تھے. کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ انہوں نے ٹھٹک کر ساس کو دیکھا. وہ خود شچوپن کی شکار بیٹی کے چہرے کے دو ٹوک سنجیدہ تاثرات کو دیکھ رہی تھی. ہم تو آ کر مل لیتے ہیں مگر تمہارے آنے کی تو اور ہی بات ہے. رہنے دے بھابی. تکلف نہ کیا کریں. پھر نبیل بھائی کہاں برداشت کریں گے؟ اس نے ہنس کر طنز سے کہتے ہوئے انہیں دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی تھی. نبیل ابھی تک کہاں معاف کرنے والا تھا. وہ اسی مقام پر تھے اور نویرا ناحق سزا کاٹ رہی تھی. بلکہ مردوں کے اس معاشرے میں سارا خسارہ آیا ہی عورتوں کے حصے میں تھا. ساجد بھائی سمجھدار تھے. وہ برداشت کر گئے تھے. مگر نبیل تو شارق زمان کا ہی کزن تھا. اسی کی طرح جذباتی اور جوشیلا. تم نبیل کی وجہ سے میکا چھوڑ دو گی؟ انہوں نے کہا تو وہ ہنس دی. میکا تو میں کب کا چھوڑ چکی ہوں. جانے دیں اس قصے کو. کوئی اور بات کریں. ہاں ہادیہ آپا آپ بتا رہی تھی کہ آنٹی نبیلہ بھابی کی والدہ کی طبیعت پچھلے دنوں بہت خراب ہو گئی تھی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. نویرا کے رویے پر وہ گمسم ہو گئی تھی. نویرا انہیں بہنوں کی طرح عزیز تھی. وہ نبیل کی وجہ سے اس کے ہاں نہیں آئی تھی. اگر آ کر رکتی بھی تو بہت دنوں بعد. انہوں نے بڑے دکھ سے نویرا کی طرف دیکھا اور پھر لب بھینچ لیے تھے. اچھا آپ بیٹھیں. اماں کے پاس جائیں. میں شاکرا سے چائے کا کہتی ہوں. وہ وہاں سے اٹھی تو انہوں نے بڑے دل گرفتہ انداز میں اس کی پشت پر پھیلی لمبے کالے بالوں کی چوٹی کو لہراتے ہوئے دیکھا. نویرا وہ شاکرا سے چائے کا کہہ کر پلٹی تو اماں بھی وہاں چلی آئی تھی. جی کیوں سزا دے رہی ہو مجھے؟ ماں کے دل کو مت آزماؤ. تم تو ہر ناتا توڑے بیٹھی ہو. کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے باہر آنے پر کہا تو نویرا خاموشی سے دیکھنے لگی. میں نہیں لینے آئی ہوں. بچے کی پیدائش تک میں تمہیں لینے آئی ہوں. بچے کی پیدائش تک اب ادھر ہی رہنا ہے. اس حالت میں اب تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی. مجھے کہیں نہیں جانا. مجھے اماں بار بار مجبور نہ کیا کریں. مجھے اس گھر میں جینے دیں. مجھے اس گھر میں نہیں جانا. رہ گئی ڈلیوری کی بات تو وہ اتنی اہم بات نہیں. ڈاکٹر سے ہر ماہ چیک اپ کروا رہی ہوں. سب نارمل ہے. ہو سکتا ہے گھر میں ہی ڈلیوری ہو جائے. اگر زیادہ پریشانی ہوئی تو ڈاکٹر فیروزہ کے کلینک چلی جاؤں گی. وہی مجھے اسسٹ کر رہی ہیں. تو کیا اب کبھی اس گھر میں نہیں آؤ گی؟ نہیں. آپ سے تعلق تو ہے اماں. مجھے بار بار پریشان نہ کیا کریں. بڑی مشکل اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں. آپ نے مجھے یہاں دوبارہ بھیجا ہے. اس کے باوجود کہ وہ شخص اس کے لہجے میں شارق کے لیے اتنی نفرت تھی کہ اماں دیکھتی رہ گئی. مجھے انتہائی ذلیل کر چکا ہے. وہ مجھے پہلے والی حیثیت دے پائے گا؟ نہیں. آپ نے یہ سوچے سمجھے بغیر مجبور کیا یہاں آنے پر. میں نے آپ کی بات مان لی. آپ مجبور ہیں. آپ کو بیٹوں کی پرواہ ہے. اور بیٹی؟ وہ ایک پل کو چپ ہو گئی تھی. پھر اماں کو دیکھا تو سر جھٹک دیا. اماں اب اس قصے کو ختم کریں. مجھے جتنا ذلیل ہونا تھا اس شخص کی نظروں میں ہو چکی ہوں. اماں بھی زخم تازہ ہے. کچھ عرصہ منتمل ہونے دیں. شاید مجھے آپ کی مجبوری سمجھ میں آ جائے. مگر اتنا میں سمجھ چکی ہوں. میرے لیے نہ صحیح نبیل بھائی کے دل میں کوئی جگہ باقی رہی ہے اور نہ ہی آپ کے گھر میں لوارسوں کی طرح زندگی گزارنے کا فائدہ. کم از کم اس گھر میں اپنی انا کو سلامت رکھے. جی تو رہی ہوں نا. آپ کی بہن کا گھر ہے. 100 بار آئے مگر بیٹی کا گھر سمجھ کر کبھی آنے کی غلطی نہ کیجیے گا. اس گھر کا تحفظ میرے لیے بس اتنا ہے کہ اس نے مجھے 4 دیواری فراہم کی ہے اور بس. اور جس دن یہ 4 دیواری کبھی تنگ پڑ گئی تو کہیں نہ کہیں کوئی ٹھکانہ مل ہی جائے گا. مگر اماں یہ طے ہے اب آپ کے گھر کبھی نہیں آنا. آپ کو اپنے بیٹوں کی عزت آبرو مبارک ہو. بیٹی جائے بھاڑ میں. نویرا نے اپنے دل کی بڑاس نکالی تھی اور اماں حیران و پریشان کھڑی نویرا کو دیکھ رہی تھی. کیا یہ وہی نویرا ہے ان کی حلیم و شفیق بیٹی؟ یہ تو حالات کی ڈسی انتہائی زہریلے لہجے میں کلام کرتی کوئی اور ہی ہنستی لگ رہی تھی. نویرا ان کے لبوں کی سسکاری کہیں اندر ہی دم توڑ گئی تھی.
वो लोग इसे लेकर सीधे एयरपोर्ट ही आए थे। फ्लाइट तैयार थी। वो इस्लामाबाद में थे। घर पहुंचते पहुंचते इनको 12 हो गए थे। समान, जुबारिया भाभी और उस्मान भाई के साथ जरिश के अलावा फरा भी थी, जिसका पहले ही इरादा इन लोगों के हमरा इस्लामाबाद जाने का था। खाना वो लोग कराची से ही खा कर आए थे। भाभी के कहने पर मुलाजमा ने फौरन चाय तैयार की थी। चाय के फौरन बाद भाभी इसे लिए समान अहमद के कमरे में चली आई थी। ये तुम्हारा और समान का कमरा है। मैं हर चीज़ रखवा तो चुकी हूँ, मगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो समान से कह देना, मैं बंदोबस्त कर दूंगी। और हाँ, ये तुम्हारा घर है, जिस तरह मेरा है। तुम किसी अजनबी जगह नहीं आई हो, इसीलिए पुरसुकून और मुतमईन होकर रहो। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा तो भी जरिस मुस्कुरा ना सकी। इतनी जिल्लत के बाद अपने घर के लफ्ज़ इसको बड़ी अजियतनाक लगे थे। वो कराची से इस्लामाबाद और अब इस घर तक मुसलसल खामोश रही थी। हाँ जी के अलावा इसने ज़बान नहीं हिलाई थी, और अब भी ज़बान से वही लफ्ज़ निकला था, जी। भाभी ने बहुत देखा और ज़रा भी खुश नहीं लग रही थी। खूबसूरत लिबास, हल्की फुल्की ज्वेलरी और मेकअप के बावजूद वो बस पज़मिर्दा और थकन ज़दा महसूस हो रही थी। वो शख्स जिसने बरसों मनपसंद मंजिल के हसूल के लिए पापियादा सफ़र किया था, और जब मंजिल पर पहुंचे इस पर यह इंकिशाफ वो मंजिल ही नहीं थी जिसके लिए इसने सरतोड़ कोशिश की। अपने सफ़र और जद्दोजहद के रायगा जाने का एहसास इस शख्स की तोड़ फोड़ करने को काफ़ी हो सकता है। जुबारिया भाभी ने ताज्जुब से जरिश को देखा। इन्हें इस शख्स और जरिश में फ़र्क महसूस हुआ। खुश रहो, समान बहुत अच्छा इंसान है। अभी तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, वक्त के साथ साथ संभल जाओगी। तुम्हारी यहाँ आमद बहुत ज़रूरी थी जरिश। वो इसका कंधा थपक कर मुस्कुराई थी। लगता है बहुत थक गई हो, कपड़े चेंज कर लो। इसके कहने पर जरिश को भी भरपूर थकन का एहसास हुआ, ज़हनी और जिस्मानी भी। ज़हनी थका हुआ तो जिस्म खुद ब खुद थकने लगता है। ऐसी ही कैफियत वो भी महसूस कर रही थी। भाभी एक दो और बातें करके चली गई। वो अपने ब्रीफकेस से अपना लिबास निकालकर वॉशरूम में घुस गई थी। कपड़े चेंज कर कर वापस कमरे में आई। इसने लिबास अलमारी में लटकाया था। जेवर दराज में दीवार पर अलमारी के अलावा बाईं जानिब बुक्स रैक था, और इसके साथ कंप्यूटर टेबल और इसके साथ रिवॉल्विंग चेयर थी। बड़े बेड के अलावा बेड की दाईं जानिब ड्रेसिंग टेबल और इसके साथ 2 सीटेड सोफ़ा था। सोफ़े के सामने तपाई थी। सारा कमरा सफ़ेद और नीले कॉम्बिनेशन की सजावट से पुरताश था। कहीं कहीं रेड और ग्रे कॉम्बिनेशन कलर भी इस्तेमाल हुआ था। नंगे पाँव कालीन पर चलते वो खामोशी से बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। आइंदा ज़िंदगी में इसे क्या होना था, इसने कुछ नहीं सोचा था। फिर सोचने के लिए कुछ था ही नहीं। सर उठाकर पूरी आन, इज्जत वकार से जीने के सब दावे धरे के धरे रह गए थे। अब ये समझौते से भरी जिंदगी कैसे गुजारेगी, उलझी। अभी वो अपनी खुद साख्ता सोचों में उलझी हुई थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो फौरन मुतवज्जा हुई थी। अपनी शख्सियत की तमाम तर वजाहत समेटे समान अहमद अंदर दाखिल हुआ था। जरिश को अपने हाथों में पसीना उतरता महसूस हुआ। इस सारे अरसे में इसे पहली बार अपना आप नर्वस महसूस हुआ था। वो नर्वस हो रही थी। इसे अपनी फीलिंग्स पर खुद ही उलझन हो रही थी। वो फौरन नज़रें चुराकर सीधी हो गई थी। समान अहमद ने इसे नज़रें चुराते बगौर देखा था। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। समान अलमारी की तरफ बढ़ा था। अपना लिबास निकाल कर पलटा तो जरिश पर निगाह डाली। वो सर झुकाए होंठ को चलती अजीब शशोपन में थी। दोनों हाथों को आपस में जकड़ रखा था। समान लिबास बदलने चला गया बगैर कोई बात किए। वापस आया तो वो इसी तरह बैठी हुई थी, गुमसुम सी। क्या बात है, क्या सोच रही हो? इसने चौंक कर समान को देखा। समान ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था, मगर दर हकीकत नजरें इसी पर मरकूज थी। कुछ नहीं। समान ब्रश ड्रेसिंग पर रखकर इसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वो सिमट कर सीधी हुई थी। तुम खुश नहीं हो यहाँ आने पर? जरिश चुप रही थी। सिर्फ एक पल समान को देखा था। तो क्या चचा जान और चची जान ने अब फिर तुम्हें मजबूर किया है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप सब लोग यही तो चाहते थे, मैं अपनी जिद और अना छोड़ कर यहाँ चली आऊँ। जरिश, समान ने बड़ी बेचारगी से इसे देखा था। आपने जिस तरह अपनी बेतबारी जाहिर की है, इसका सिर्फ यही हल था कि मैं यहाँ आ जाती। जरिश प्लीज़। समान ने इसे एकदम टोक दिया था। मैं इस सारे किस्से में खुद को क्लियर कर चुका हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैंने इस घर में इस तरह कभी नहीं आना चाहा था। मेरी ज़ात पर लगाया गया आपकी वालदा का इल्ज़ाम इसी तरह बरकरार है ना? वो हट तो नहीं गया? जरिश, खुद सोचो, अगर मुझे वो सब फिर से कबूल करना ही होता तो वो इल्ज़ाम लगाती ही क्यों? इन्होंने सब प्लान के तहत किया था। सब लोग बेवकूफ़ नहीं होते। बहुत से लोग फहम शऊर रखते हैं, हालात का दुरुस्त तजिया करने की सलाहियत भी रखते हैं। तुम एक ही बात को जहन में जगह क्यों दे रही हो? मुस्बत भी तो सोच सकती हो। वो चुप ही रही थी। वो फिर बोल कर करती भी क्या? मामा से लेकर समान तक सब के पास
पीछे जाने के हजार दलाइल थे, ब्लैकमेल करने के सोर्सेज 100 हरबे, मगर कोई इसकी ज़हनी हालत और जिस्मानी हालत और सोच को पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। हता कि इसको समझ लेने का दावेदार समान अहमद भी नहीं। मुझे नहीं पता क्या मुस्बित और क्या मनफी है, बस मुझे खुद पर इल्ज़ाम जीने नहीं देता। मैं चाहूँ भी तो खुद को मामा या आपकी सोच के मुताबिक नहीं डाल सकती। मामा ने मुझे समझाया और मैंने इनकी हाँ में हाँ मिलाई, वजह कुछ भी हो, मगर मामा ने कहा कि अगर मैं आप लोगों के साथ ऐसा आज यहाँ नहीं जाऊंगी तो ये रिश्ता ख़त्म करने की बात करेंगी। समान अहमद ने चौंक कर इसे देखा। इनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी। बस पूछने पर चची ने कहा था इन्होंने इसे समझा दिया है, बस वो कुछ परेशान है, सो इसे प्यार से मोहब्बत से हैंडल कर लेना। जिद और लाड प्यार ने इसकी कुछ आदतें बिगाड़ भी दी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इसको गलती पर गलती करने दी जाए। और अब जो जरिश बता रही थी, समान ने इंतहाई ताज्जुब से इसे देखा था। मतलब जब मामा को मेरी बेवकूफ़ियों की सब फहरिस्तें अजबर हैं तो यकीनन आप भी बेखबर नहीं होंगे। इस तलखी ने इसके लहजे में कहा, बल्कि तंजिया अंदाज में कहती। बड़ी चुभती नजरें इसने समान अहमद को देखा था। मुझे कुछ नहीं इल्म चची जान ने तुमसे क्या बात की है और किस अंदाज में की है। बहरहाल अगर तुम नहीं आना चाहती तो थी या मुतमईन नहीं थी तो मुझसे बात कर लेती। यकीनन तुम्हें यूं मजबूर ना किया जाता। वो समान को मुसलसल गलत समझने की कोशिश कर रही थी। समान एकदम संजीदगी से कहते हुए बिस्तर से उठ गया था। रह गई यहाँ आने की बात, तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूँगा। तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, जिस तरह का भी तुम ताउन चाहोगी मैं तुम्हें फराहम करूँगा। चचे जान ने तुम्हें क्या कहा? मुझे कतई इल्म नहीं था। नहीं, इसके किसी कॉलो फेल का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, इन्होंने ये ज़रूर बताया था कि तुम पढ़ना चाहती हो और कराची या इस्लामाबाद से हट कर किसी इदारे में दाखिला लेना चाहती हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ हर्ज है। तुम टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, जहाँ भी कहोगी दाखिला मिल जाएगा। खिड़की के पास जाकर खड़े होते समान अहमद ने यह सब कहा था। जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात है तो भी तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं इस रात कराची में तुम लोगों के यहाँ रात ठहरा था। इस सिलसिले में तुमसे तफसीली बात हो चुकी है। मैंने इस रात भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मेरी तरफ से तुम पर इस रिश्ते की जानिब से कोई दबाव या ज़बरदस्ती नहीं होगी। जब तक तुम ये सादगी और इत्मीनान महसूस नहीं करोगी, मेरी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं होगी। बस शर्त यह है कि तुम एतबार करना सीख जाओ। एतबार करो मुझ पर। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा वजूद बहुत अहम है। अपने जहन को रिलैक्स करो। तुम यहाँ हो तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। किसी के दिल में जगह बनाने, घर करने में, मोहब्बत की जोत जलाने में बरसों लग जाते हैं, जबकि नज़रों से गिरने में एक पल लगता है। हमारा रिश्ता एक अटल हकीकत है। बंदा बशर हूँ और इंसान ही जज्बात में बहता है, मगर फिर भी इतना ज़रूर बता देता हूँ कि तुम्हें बस कभी अपने रिश्ते से मुत्तफिक होने पर मजबूर नहीं करूँगा। रात बहुत हो गई है और थकन भी बहुत हो रही है। क्या ख्याल है, अब सोना चाहिए? अगर फिर भी कोई बात जहन में डिस्टर्ब कर रही है तो सुबह बात कर लेंगे। जरिश ने बहुत हैरान होकर समान को देखा था। मेरे साथ बेड तो शेयर कर लोगी ना? मजबूरी है, समान ने मुस्कुरा कर कहा तो इसने फ़ौरन नज़रें चुरा ली थी। बगैर कुछ कहे वो सर हिलाते हुए बिस्तर पर दराज हो गई थी। समान ने एक दो पल इसे देखा और फिर कुछ सोच कर मुतमईन होते हुए लाइट ऑफ कर दी थी। नवाज फारूक की शादी का कार्ड आया था। चूँकि बारात लाहौर से कराची जाना थी, सो सारे ख़ानदान से एक फ़र्द ही इनवाइटेड था, जबकि वलीमा में सारा ख़ानदान बरादरी मौजूद थी। शारिक ज़मान बारात के साथ कराची गया था, जबकि मैं 3 दिन बाद मुनक्किद होने वाले वलीमे में जाने के लिए अम्मा तो तैयार थी। नवीरा को भी साथ चलने का कह रही थी, मगर वो मुसलसल टाल रही थी। अम्मा, मैं भला क्या करूँगी वहाँ जाकर, वो भी इस हालत में? बाकी जो लोग जा रहे हैं तो वो पागल है ना? वो तुम्हारी हालत को क्या हुआ? अल्लाह का करम है, नसीबों वालियों पर ये वक्त आता है। हाँ, नसीब। इसका चेहरा पर तंज बिखर आया था। शाकरा को कहो कपड़े तैयार करते तुम्हारे। शारिक को मैं कह चुकी हूँ, हाल में जाना है। इसके साथ तुम भी जा रही हो मेरे साथ। मसला सिर्फ शारिक का नहीं था, पूरा ख़ानदान वहाँ इकट्ठा होना, न जाने क्या क्या कुछ सुनने को मिलना था। वहाँ सिर्फ चंद लोग ही नहीं होते, हमी चाचा की फैमिली के अलावा भी बहुत से लोग होने थे, और वो किसी से भी सामना करने के मूड में नहीं थी। मगर अम्मा को इसकी बात समझ नहीं आ रही थी। बाज़ औक़ात वो बिला वजह से ज़िद पर अड़ जाती, जैसा कि अब। जाओ शाबाश, शाकरा को साथ मिलाकर तैयारी करो। अच्छा सा कोई सूट देख लेना, और जेवर वगैरह भी। ख़ानदान की पहली शादी है जो देखोगी। अम्मा की ख़ास हिदायत पर वो खामोशी से उठ खड़ी हुई थी। अब एक अम्मा ही तो रह गई थी इसके दुख सुख की साथी। वो अब इनसे बहस करके इनको कैसे नाराज़ कर लेती। लिबास निकाल कर इसने शाकरा को दिया था, वो इस्त्री करने चल दी थी तो वो नहाने बाथरूम में घुस गई। तैयार होकर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर वो अम्मा के कमरे में आई तो शाकरा इनको तैयार करवा चुकी थी। इस वक्त वो इसके
بال بنا رہی تھی۔ سفید چکندار لباس میں اماں کی شخصیت بڑی باروب لگ رہی تھی۔ بڑی پیاری لگ رہی ہیں اماں، اس کی تعریف پر اماں ہنستی تھی۔ اور یہ کیا، تم نے تو زیور ہی نہیں پہنا، نہ گلے میں، ہاتھ کان بھی خالی ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں کہ سسرال دونوں طرف سے کتنا زیور ہے، سنبھالنے کے لیے تو نہیں پہنایا ہم نے، شادی بیاہ پر ہی پہنو گی تو کب پہنو گی؟ اماں جانے بھی دیں، اب یہ لباس دیکھ رہی ہیں نا، بمشکل پورا آیا ہے، زیور پہن کر اور بھی عجیب لگوں گی، سب مڑ مڑ کر دیکھیں گے۔ شارق تیار ہو گیا ہے؟ وہ آج گھر پر ہی تھا۔ اماں نے شاکرہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اپنے کمرے میں ہوں گے، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ شاکرہ چلی گئی تو اماں نے اسے دیکھا، جہیز میں سے اس نے سوٹ پہنا تھا۔ اماں کے دل میں کئی بار خیال آیا کہ شارق زمان کی لا کر دی ہوئی وہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتی تھی، چاہے جوتا ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف اس گھر میں رہ رہی تھی۔ حتیٰ کہ ایک بار ڈاکٹر فیروزہ کی لکھ کر دی گئی میڈیسن ختم ہو گئی تو نویرہ کے ذکر کرنے پر انہوں نے وہ نسخہ لے کر ملازم کو دیا تھا، اس وقت شارق چلا آیا۔ وہ اماں کی دوائیوں کا نسخہ سمجھا تھا، اسے کسی کام سے فوراً واپس بھی جانا تھا، وہ نسخہ ملازم سے لیا تھا۔ رات کو اس نے میڈیسن لا دی تھی، مگر نویرہ نے وہ میڈیسن استعمال نہیں کی تھی، اس نے خود سے ہی خریدی ہوئی میڈیسن استعمال کی تھی۔ کتنے دنوں بعد انہوں نے دراز کھولا تو وہاں میڈیسن کے شاپر جوں کا توں پڑے دیکھ کر انہیں بڑا دکھ ہوا تھا۔ کچھ زیور پہن لو، وہاں سب سوال کریں، کم از کم میری عزت کے لیے ہی پہن لو۔ نویرہ نے بڑی بے چارگی سے اماں کو دیکھا تھا، وہ کہہ نہیں سکتی تھی زیور پہننے میں اسے کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ سارا زیور میکے اور ادھر کا سارا شارق زمان کے کمرے میں اس کے پرسنل لاکر میں رکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے کیسے نکالتی؟ وہ تو کبھی اس کے کمرے کے قریب سے بھی گزرتی نہیں تھی، کجا کہ اس کی پرسنل دراز میں سے زیور نکالنا۔ اماں وہ سارا زیور شارق کے لاکر میں ہے، آپ لا دیں۔ اماں کی طرف کا، ادھر کا بہت بھاری ہے، میں نہیں پہنوں گی۔ امی والا لا کر دیں۔ اماں نے نویرہ کے رویے پر بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ مصنوعی ٹانگ سنبھالتی آہستہ آہستہ چلتی کمرے سے نکل گئی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اماں زیور لے کر آئیں تو اس میں کچھ زیور ادھر کا بھی لے آئی تھی۔ یہ میں نے خود بنوایا تھا شارق کی دلہن کے لیے، یہ شارق کی کمائی کا نہیں ہے، اس کے ابا کی کمائی کا ہے، اور یہ زیور میں نے اپنے زیور دے کر بنوایا تھا، پہن لو۔ وہ اب بھلا کیا کہتی؟ تمام زیور اماں نے اسے اپنے ہاتھ سے پہنایا تھا، ان کے اندر نویرہ کو ہر وقت اپنے ہاتھوں سے بنانے سنوارنے کے کتنے ارمان تھے۔ شارق نے گاڑی نکال کر ہارن دیا تو وہ اماں کو سہارا دیے باہر چلی گیا۔ آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اماں ویل چیئر کے بغیر باہر جا رہی تھی، ورنہ وہ ویل چیئر ضرور گاڑی میں رکھواتی تھی۔ شارق زمان نے انتہائی حیران ہو کر نویرہ کو دیکھا تھا، اماں کے ساتھ اسے دیکھ کر تعجب ہوا تھا، وہ اس کی گاڑی میں سفر کرنے پر راضی کیسے ہو گئی؟ اس نے ایک پل کو ضرور سوچا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اماں کو بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک بار بھی شارق زمان پر نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ مکمل طور پر ان لمحوں میں اس نے شارق زمان کی نفی کی تھی، جیسے وہ کوئی شوفر ہو۔ شارق زمان کے اندر ایک دم چبھن ہونے لگی تھی، وہ عورت ذات ہو کر اسے نظر انداز کر رہی تھی، کوئی اس کے اندر تلملا رہا تھا۔ سارا راستہ شارق زمان کے اندر ایک اندیکھی آگ جلتی رہی تھی۔ نویرہ کی کنڈیشن اور اپنی اولاد کا آنا نہ ہوتا تو شاید اب تک سارے حساب بے باک کر چکا تھا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو چچا چچی نے بڑے پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ نویرہ کو اماں کے ساتھ دیکھ کر دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ایک سکون سا اترا تھا۔ نواز فاروق کی شادی کر دینے کے باوجود نویرہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی اب بھی دکھ دیتی تھی، مگر اب اماں اور اس کے پیچھے مطمئن سے شارق زمان کو دیکھ کر اپنی زیادتی کا احساس کم سا ہونے لگا تھا۔ نویرہ کے ساتھ ساتھ انہیں نواز فاروق بھی بے قصور لگتا تھا۔ چچی نے بہت محبت سے گلے لگا کر پیشانی چومی تھی، وہ بھتیجی بیاہ کر لائی تھی، مگر نویرہ کو کھو دینے کا ملال اپنی جگہ تھا۔ ان کی باقی چاروں بیٹیاں بھی نویرہ کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ جس طرح نویرہ نواز کے انکار کے بعد ان لوگوں سے ناراض ہوئی تھی، ان کو یقین تھا کہ وہ اب شادی پر بھی نہیں آئے، مگر نویرہ نے آ کر بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سب نویرہ کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ وہ سب رشتہ داروں سے اماں کو ملوانے کے بعد ایک ٹیبل کے گرد آ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں اور نبیلہ بھابی وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ نویرہ کے لیے یہ بات تسلی بخش تھی کہ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظام کیا گیا تھا، درمیان میں پارٹیشن کا انتظام تھا، سوائے چند قریبی احباب کے کوئی بھی خواتین والے حصے میں نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نواز کی بہنیں سجی سمری رومیسا کو لیے اسٹیج پر آ گئی تھی۔ نویرہ نے بغور دیکھا، اچھی خاصی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ زبیدہ چچی اور رمشا بھی ان کے پاس ہی آ بیٹھی تو کھانا کھانے تک وہ سب
آپس میں مصروف رہی تھی۔ وہی خاتان کے قصے، نواز کا والدین کے پاس آ جانا اور خاص طور پر مان جانا اور یہ آنن فانن شادی۔ 1 ماہ کے عرصے میں یہ سب ہوا تھا۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن کا سلسلہ چلا تو نواز فاروق نے اپنی پوری فیملی کو اسٹیج پر بلا لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں نویرا نے ایک عرصے بعد اس شخص کو دیکھا تھا۔ نواز نے جب شادی سے انکار کیا تھا تو وہ کتنا دکھ ہوا تھا، اور پھر جب شاعری کی زبانی علم ہوا کہ وہ کیوں انکار کر کے چلا گیا ہے تو اس نے اس سے نفرت بھی کی تھی۔ یہ بھی سوچا تھا کہ زندگی بھر کبھی سامنا نہیں کرنا، اور اگر کبھی بدقسمتی سے سامنا ہو بھی گیا تو نفرت سے اپنے ساتھ کی جانے والی ناانصافی پر اس کا گربان جھنجھوڑ دے گی۔ مگر اب وہ چپ چاپ بس اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بس ایک بار اٹھ کر ادھر ادھر نہیں گئی تھی، جب سے آئی تھی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی شارق زمان سے۔ شادی کے بعد نبیل بھائی کی نفرت کے باوجود اس نے سمجھوتے کی راہ اپنائی، مگر رضا حمید کی جذباتیت نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ پھر وہ اکیلے نواز فاروق کو قصوروار کیوں ٹھہراتی؟ رضا حمید بھی اس کی بربادی میں برابر کا شریک تھا۔ اس نے زندگی بھر کسی سے نفرت نہیں کی تھی، مگر اب لگتا تھا کہ شارق زمان اور حمید اس کی زندگی کے وہ مثلث ہیں جنہوں نے نہ صرف اسے بدنام کر دیا تھا بلکہ اس کے اندر سے جینے کی آرزو تک چھین لی تھی۔ دل کے اندر کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ مسلسل اسٹیج پر بیٹھے جوڑے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی نگاہوں کا ارتکاز ہی تھا کہ نواز فاروق نے بے چین ہو کر اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ دائیں طرف تیسری ٹیبل کے گرد بیٹھی نویرا پر نگاہ جم گئی تھی۔ نویرا، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ جب سے لاہور آیا تھا دل کی بے پناہ خواہش کے باوجود نویرا سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ بارہا شارق کے گھر کے گیٹ پر جا کر پلٹ آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ولیمے کی تقریب میں وہ اٹینڈ کرنے آئے گی۔ اب سامنا ہوا بھی تو نگاہیں ایک دم جھک گئی تھی۔ احساس شرمندگی سے نظریں ملانے کا یارانہ نہ تھا۔ نویرا نے نواز کی نظریں چرا لینے پر بڑے تمسخر سے اسے دیکھا تھا۔ اوفو، یہ مرد حضرات! وہ اندر ہی اندر ہنسی تھی۔ اسے یقین تھا اب ساری عمر نواز فاروق اس کے سامنے آ جانے پر ایسے ہی نگاہیں چرائے گا، اس کے الزام دیتی تمسخرانہ نگاہوں سے چھپے گا۔ اس نے نویرا احسان کو کھویا تھا۔ اب جو نویرا تھی وہ اس نویرا سے بہت مختلف تھی جیسے حالات نے اپنی دانست میں شطرنج کے مہرے کی طرح بڑی بری طرح پیٹا تھا۔ حمیرہ 2-3 بار اس کے پاس بھی آئی تھی کہ وہ بھی رمیسا کے ساتھ تصویر کھنچوا لے، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا کہ وہ اس حال میں تصویریں بنواتی کہاں جچے گی۔ چند تصویریں بنوا کر نواز فاروق اسٹیج سے اترا تو بڑی اماں کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا دل کے ہزار ہاتھ چاہنے کے باوجود ان سے ملنے نہیں جا سکا تھا۔ احساس ندامت ہی ایسا تھا، خود میں کسی سے بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ السلام علیکم بڑی اماں۔ وہ نویرا کی بائیں جانب بیٹھی بڑی اماں کے پاس چلا آیا تھا، جھک کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ وہ بڑی محبت و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، بس۔ وہ عاجزی سے بولا تھا۔ ایک بار پھر اس نے دائیں جانب بیٹھی نویرا کو نہیں دیکھا تھا، وہی نظریں چراتا شرمندہ سا انداز۔ جیتے رہو، بڑی پیاری بیوی ہے تمہاری، اللہ نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے بڑے خلوص سے دعا دی تھی۔ نویرا سر گھما کر باہر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی۔ تم کیسی ہو نویرا؟ نویرا کو جو گمان تھا وہ کبھی اس سے سامنا ہونے پر بھی اس سے کلام نہیں کرے گا بلکہ نگاہ چرا کر ندامت سے سر جھکائے گا، گزر جائے گا۔ ایک دم پلٹ کر دیکھا، وہ سنجیدہ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیسی لگتی ہوں میں؟ آپ جناب کے تکلفات کی پرواہ کیے بغیر اس نے بڑی بدلحاظی سے اسے گھورا تھا۔ اس کے لیے یہ بات شوق سے کم نہیں تھی کہ نواز فاروق نے اسے خود سے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ بظاہر تو ٹھیک ہی لگ رہے ہو، اندرونی کیفیت تو تم خود ہی بتا سکتی ہو۔ بڑے بھرپور اعتماد سے وہ مخاطب ہوتا۔ نویرا کا جی چاہے ایک دم اٹھے اور اس کا وجود کا اعتماد سے پر چہرہ اپنے ہاتھوں کے پتھروں سے سرخ کر دے۔ اس کی زندگی کو رسوائی کے دلدل میں دھکیل کر جانے والا کیسے مطمئن و آسودہ زندگی گزار سکتا، جبکہ ہر رات انگاروں کے بستر پر لوٹتی گزر رہی تھی۔ میری اندرونی و بیرونی کیفیت سے تمہیں مسٹر نواز فاروق کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ براہ کرم اپنا راستہ ناپیے، اور ہاں، آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں اپنی تذلیل و رسوائی بھولی نہیں ہوں، جو ذلت و ہتک میں نے تمہاری اور شارق زمان کی ملی بھگت سے اٹھائی ہے، آئندہ میرے سامنے بھی مت آنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں خود پر قابو نہ رکھ پاؤں اور نفرت سے تم پر تھوک دوں۔ تم میری روح کے قاتل ہو، سمجھے تم؟ وہ صرف بولی نہیں بلکہ نفرت کی شدت سے پنگاری تھی۔ اس کے لہجے میں نفرت کے شعلے دہک رہے تھے۔ وہاں موجود ہر فرد صرف حیران و گمسم ہی نہیں ہو اٹھا تھا بلکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں۔ نویرا ایسا رد عمل بھی ظاہر کرے گی اور نواز فاروق اس کی وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اس نے ایک لمحے میں نویرا کے اندر لمحہ بلمحہ چلنے والی ساری نفرت دیکھ لی تھی۔ وہ شارق زمان کے ساتھ مطمئن و خوش نہیں تھی۔ اس نے ایک لمحے میں ادراک حاصل کر لیا تھا، اور اگر وہ خوش ہوتی تو شاید اسے بھی قابل معافی سمجھ لیتی یا خطا کار کی خطا جان کر نگاہ پھیر لیتی، مگر اس کے لہجے میں صرف اور صرف نفرت کی آگ تھی جو ہر چیز جلا کر بھسم کر دینے کو
भस्म कर देने वाली थी। नवेरा आहिस्ता, अम्मा ने टेबल पर पड़े इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे खुद पर काबू पाने का कहा। वो सख्ती से लब भींच गई। जुबैदा चाची के अलावा रिमशा भी हैरत ज़दा गुमसुम सी थी। जाओ नवाज, अपना काम करो, अभी जख्म हरे हैं, इस वक्त के साथ ही मंदमिल होंगे। इस तकरीब में शामिल होना हमारा फ़र्ज था, मगर तुम हमारे सगे बेटे की तरह हो, अपना खून हो मगर कोशिश करना नवेरा से सामना ना हो। जाओ अब तुम। अम्मा के कहने पर वो चुप तो हो गई थी, मगर निकाहों की नफरत इसी तरह बरकरार थी। अम्मा के कहने पर नवाज फारूक बड़े बड़े दम बढ़ता वहाँ से निकल गया था। जारी है। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।